بسم اللہ الرحمن الرحیم LLB Part 1 Paper English Short Stories A Fly in the Ointment. Ointment mean کاہلی بربادی فلائی مکھی بربادی اور کاہلی میں مکھی کا آنا بربادی اور کاہلی کی کیفیت میں دیوالیہ پن میں ایک نئی بے چینی اریٹیشن سمپل میننگ کاہلی اور دیوالیہ پن میں اضافی بے چینی ناقابل برداشت بے چینی دا فلائی ان دا آؤنٹمنٹ اوور آل دیوالیہ پن کی بے چینی دیوالیہ پن کی بے چینی دس اسٹوری از ریٹن بائی پریچٹ This is the writer from England. He was born in 16 December 1900. It means that he is the writer of 20th century. He was the son of a famous failed businessman, Walter Pritchett. He was the son of Walter Pritchett. His father used to do businesses. ایک دفعہ اس کی نیوز پیپر اور اسٹیشنری کی شاپ تھی. اس نے ٹوائے شاپ بھی کی اور بہت سارے بزنس کیے اور بہت سارے بزنس میں ناکامی کا سامنا کیا. اور پریچٹ جو کہ اس وقت لڑکا تھا اپنے باپ کی ناکامیوں کو دیکھتا رہا اور اس کی اپنی نفسیات پر ان ناکامیوں کا کیا اثر پڑا اور اس وقت کے حالات سے وہ اپنے فادر کی ناکامی کو کس طرح منسلک کرتا ہے. یہ سارے پریچٹ کے اپنے انٹرنل پرابلمز ہیں. بہرحال اس سٹوری کے اندر 3 کریکٹرز ہیں. فرسٹ ہارولڈ ہارولڈ ہی از 35 years old 35 سالہ نوجوان ہے. 2 فادر near about 65 years old he is the father of Harold. تھرڈ کریکٹر ہے فلائی. سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے ہارولڈ جو کہ 35 سالہ نوجوان ہے وہ ایک بلڈنگ کے سامنے ایک ٹیکسی میں آتا ہے. ٹیکسی بلڈنگ کے سامنے رکتی ہے. ہارولڈ باہر نکلتا ہے اور سوچتا ہے اسے اپنے باپ کی اس فیکٹری کے اندر کار میں نہیں آنا چاہیے تھا بیکاز اس کا فادر کویسچن کرے گا کرٹیسائز کرے گا کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں یا اسے پیسے خرچ نہیں کرنے چاہیے تھے ٹیکسی کے کیونکہ وہ ایک غریب آدمی ہے. ہارولڈ کا فادر کبھی ایک خوشحال بزنس مین ہوا کرتا تھا. آج وہ اس طرح خوشحال بھی نہیں رہا بلکہ وہ دیوالیہ ہو گیا ہے. بینکرپٹ ہو گیا ہے. دیوالیہ ہو گیا ہے. برباد ہو گیا ہے. اس کا بزنس ختم ہو چکا ہے اور کیونکہ اس نے بینک سے لون پر مشینری لی ہوئی تھی اور بینک نے اور دوسرے جو اس کے پارٹنر تھے وہ اس سے اس کی مشینری لے گئے ہیں واپس. آج اس کا باپ اپنی اس فیکٹری میں آخری دن گزار رہا ہے اپنے بزنس لائف کا. ہارولڈ بلڈنگ میں داخل ہوتا ہے. آفس کے قریب جاتا ہے اور وہاں پر ناک کرتا ہے اور اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے. اپنا نیم بتاتا ہے. ہیئر از مسٹر ہارولڈ. اس کا باپ باہر آتا ہے, دروازہ کھولتا ہے اور ہلکی سی مسکراہٹ دیتا ہے اور کہتا ہے
अंदर तशरीफ ले आए प्रोफेसर साहब। हालांकि हारोल्ड एक मामूली दर्जे का टीचर है, ही इज़ नॉट प्रोफेसर, ही इज़ नॉट रिच, उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत भी नहीं है। वो उसको तंजिया अंदाज में कहता है, अंदर तशरीफ ले आइए प्रोफेसर साहब। और वो उसे कहता है, इस ऑफिस में अगर तुम अभी भी इसे ऑफिस समझते हो तो। बेटा अंदर दाखिल होता है, दोनों बाप बेटा क्रॉस द टेबल बैठ जाते हैं और उसका बाप बात करना शुरू करता है और कहता है, कोई बात नहीं, बिजनेस में ऐसा होता रहता है, नशेब व फराज बिजनेस का हिस्सा है, तो इसमें हिज़्नो मलाल कैसा, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, बिजनेस का हिस्सा है। और वो फिर बात करता है कि किस तरह वो एक बार बहुत खुशहाल था, उसके पास बहुत पैसे थे, फिर किस तरह वजूहात बनी कि एक क्राइसिस आए और हालात ख़राब हो गए। मैं अकेला बिजनेसमैन नहीं हूँ जो बर्बाद हो गया हूँ, और भी मेरे साथ बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो तबाह हो गए हैं। वो अपनी बिजनेस की बात कर रहा होता है, उसे बता रहा होता है। उसका बेटा उसकी बात सुन रहा होता है और उसे कहता है कि वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है। हारोल्ड को याद आता है किस तरह जब वो खुशहाल था और अब हारोल्ड को किस तरह उसका बाप क्रिटिसाइज़ किया करता था। उसके टीचिंग के शोबा पर उसने, टीचिंग के जो प्रोफेशन उसने अपनाया था उस पर क्रिटिसाइज़ किया था। वो उसे कहता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते, तुम्हें बिजनेस करना चाहिए। लेकिन हारोल्ड ने फिर भी वही प्रोफेशन अपनाया था जिससे वो सेटिस्फाई था। उसका बाप कहता है कि किस्मत के खेल निराले हैं, मैं बहुत कामयाब बिजनेसमैन नहीं बन सका, मैंने बहुत मेहनत की है ज़िंदगी के अंदर, मैंने बहुत काम किया है, लेकिन बस मेरे नसीब में दौलत और पैसा नहीं था। वो अपनी स्ट्रगल के रोने रोता है और बैठा रहता है। इतनी देर में एकदम उसके जहन में ख्याल आता है और वो अपने बेटे से कहता है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो शायद मैं अपने बिजनेस को फिर स्टैंड कर सकता, लेकिन ऐसा अब नहीं हो सकता मेरे ख्याल में। एक फ्लाई, एक मक्खी उस रूम में दाखिल होती है और उस मक्खी की भिनभिनाहट ऐसी है जैसी कि एक वक्त उस चलती हुई फैक्ट्री में मशीनों की भिनभिनाहट थी। ये चीज़ उस ओल्ड मैन को इरिटेट करती है। फादर मक्खी को निकालने के लिए डस्टर उठा लेता है और उसे बार बार मक्खी को मारने की कोशिश करता है। मक्खी उसके हाथ से बचती रहती है और फिर बेटा उठता है और खिड़की खोल देता है, मक्खी वहाँ से बाहर चली जाती है। बाप उसका काफ़ी इरिटेट हो गया है और वो कहता है कि मेरे ख्याल में मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मक्खी इतनी देर में दोबारा दाखिल होती है और उसका बाप इतना इरिटेट होता है उस फ्लाई से कि वो टेबल के ऊपर चढ़ जाता है और उस मक्खी को मारने की कोशिश करता है। वो फ्लाई जाकर सीलिंग के साथ, छत के साथ चिमट जाती है। उसका बाप अपने बेटे को कहता है कि वो उसे सपोर्ट दे नीचे उतारने के लिए। नीचे उतरता है तो कहता है कि मेरी उम्र 65 साल हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं थक चुका हूँ, मैं स्ट्रगल कर कर के थक चुका हूँ, बस अब मैं मज़ीद स्ट्रगल नहीं करना चाहता। ये अच्छा हुआ है कि मेरा बिजनेस तबाह हो गया, मुझे शऊर आ गया, मुझे पता चल गया ज़िंदगी क्या है, हकीकत क्या है, मैंने रियलाइज़ कर लिया मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। ऑल द लाइफ आई हैड बीन हैंकरिंग बिहाइंड द मनी। पैसे के पीछे मैं भागता रहा हूँ, अब मैं एक सिंपल ज़िंदगी चुनूँगा, मैं किसी गांव में ज़िंदगी गुजारूंगा, मैं किसी दरिया के किनारे पर जाकर एक हट लगा लूँगा, मैं वहीं पर रहूँगा और मैं कभी दौलत की ख्वाहिश नहीं करूँगा। उसके बेटे से उसके बाप की मायूसी नहीं देखी जाती। वो एक बिजनेसमैन, वो एक्साइटेड पर्सन, वो जो हर वक्त कहता था कि मैं बड़ा खुशहाल हूँ, दिस इज़ द वाई, दिस इज़ द राइट वाई ऑफ लिविंग, बिजनेस सब कुछ है। और वो इतनी मायूस कुन बात करे, बेटे से रहा नहीं गया और बेटे ने कहा कि मैं आपकी, मेरे पास कुछ रकम है जो मैंने जमा की है अपनी टीचिंग से और मैं वो पैसे आपको देना चाहता हूँ, आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। उसका बाप शायद किसी कागज़ पर कोई चीज़ लिख रहा था और
उसने जब ये बात सुनी तो एकदम से वो टेबल के ऊपर झुक गया, उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट आ गई, वो एकदम उसके चेहरे पर लालच के आसार नमूदार हुए और वो आगे की तरफ झुकते हुए उसने बेटे से पूछा, क्यों, कहाँ से, कैसे लाओगे, कितने पैसे हैं? उसके हाथ के अंदर सिल्वर कैप वाली पेंसिल थी और उसके बेटे ने कहा, मेरे पास थोड़ी सी हार्ड अर्नड मनी है, मैंने सेव किया, वो मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आप बिजनेस करें। उसका बाप उस ऑफर को कबूल कर लेता है और उससे फर्दर पैसे की उम्मीद लगा लेता है और पैसे के ऊपर ही डिस्कशन करना शुरू कर देता है। द स्टोरी इज ओवर। दिस वॉज द स्टोरी। वॉट आर द थीम्स इन द स्टोरी? फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप इन योर माइंड, इन 1930 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक सेटबैक आया था। पूरी दुनिया की इकॉनमी डूब गई थी, लोगों के बिजनेस फ्लॉप हो गए थे, कोई चीज भी बाकी नहीं बची थी, लोग, हजारों लोग भूख से मर गए थे। तो इसी दौर के अंदर 1930 के अंदर ही वाल्टर प्रिचेट, वाल्टर जो कि प्रिचेट का फादर है, वाल्टर, उसने भी ऐसा सेटबैक देखा था और इन्हीं मसाइल से दो चार हुआ था। तो ये स्टोरी उस 1930 के सेटबैक के बैकग्राउंड में लिखी गई है। वन इज द थीम। सेकेंड, देयर इज ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। प्रेचेट ने अपने वालिद के प्रॉब्लम्स को देखा है, उसके बार बार फेल होने को देखा है, डिफरेंट किस्म के बिजनेस से करते हुए देखा है और फिर किस तरह से उसने सरवाइव किया और किस तरह के मसाइल प्रिचेट को देखने पड़े। ये सारी चीज़ें इस स्टोरी के अंदर, सारी चीज़ों का कोई ना कोई व्यू, कोई ना कोई कड़ी मौजूद है। इस स्टोरी में फादर सन रिलेशनशिप मौजूद है कि फादर बेटे को क्रिटिसाइज करता है बिकॉज उसका माइंड सिर्फ मनी की तरफ है और बेटा जो है वो, क्योंकि उसका माइंड टीचिंग की तरफ है, वो एक सिंपल लाइफ गुजारना चाहता है। तो बाप और बेटे के दरमियान में एक स्ट्रेंड, एक तनाव है उसके दरमियान में। बाप बार बार क्रिटिसाइज करता है, ही इज ऑल्सो राइट एट हिज एज, बिकॉज वो दुनिया के तमाम रिलेशंस को और दुनिया की तमाम चीज़ों को पैसे से देखता है। बेटा अपनी जगह पर, अपने एंड पर राइट है क्योंकि वो लाइफ को सिंप्लिसिटी से देखता है। तो बोथ आर एट द एक्सट्रीम्स। फादर एक एक्सट्रीम पर है तो बेटा दूसरे एक्सट्रीम पर है। सो इस दो डिफरेंट एक्सट्रीम पर होने की वजह से यहाँ एक नज़रियाती तनाव है, एक नज़रियाती क्लैश है दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। बाप और बेटे के रिलेशनशिप को दिखाया गया है और फिर एंड पर देखे इस रिलेशनशिप को कि बेटे से रहा नहीं गया कि वो अपने बाप को मदद ना करे, उसने अपने बाप की मदद के लिए फिर एक कदम आगे बढ़ा लिया। तो एट द सेम टाइम सिंपैथी का भी एलिमेंट है, एट द सेम टाइम डीएनए का भी एलिमेंट है कि जब फादर डीएनए परेशान होता है तो सन डीएनए लाजमी परेशान होता है। और दुनिया को देखने के दो डिफरेंट जाविये हो सकते हैं अपनी अपनी जगह पर। और एक शख्स जो एक चीज़ से मोहब्बत करता है, चाहे वो दौलत क्यों नहीं है, जब उससे वो दौलत छिन जाती है तो उसकी भी बिल्कुल वैसी ही कैफियत और फीलिंग्स होती हैं जैसे कि एक महबूब के छिन जाने पर एक लवर की फीलिंग्स होती हैं। वेरी सिंपल। वी हैव टू आल्सो कंसीडर दिस एलिमेंट टू इन द रिलेशनशिप्स, because I have seen the same situation in my life. My father was businessman, total 24 hour he criticizes me. उसने कहा never, you are wrong, and I adopted the profession of teaching. Very simple life I have adopted. जब मेरे फादर की डेथ हुई उससे 1 week बिफोर मैंने बैठ के पूछा, मैंने कहा मेरे अंदर सारी की सारी बुराइयां हैं, एक चीज़ बताइए, कोई एक तो खूबी मेरे अंदर होगी। उस वक्त मैं 3 बुक्स का राइटर था। मैंने कहा कोई एक खूबी तो मेरे अंदर होगी। और 7 दिन पहले अपनी डेथ से उसने मुझे कहा, उसने कहा नहीं, तुम्हारे अंदर एक खूबी भी नहीं है।
लेकिन जब मेरे वालिद परेशान हुए, मेरे अंदर भी परेशानी आई, मेरे अंदर भी दुख हुआ, मलाल आया। तो फादर सन रिलेशनशिप को यहाँ पर नुमाया किया गया है। टू साइडेड पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, टू साइडेड पर्सनैलिटी दिखाई गई है। फादर वो बाहर अपने कस्टमर्स को शो करता है कि ही इज सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ही इज लॉयल with the customers, with the people, and he is living a satisfactory life, और उसका बिजनेस बहुत अच्छा है, कामयाब है। लेकिन इंटरनली उसके अंदर गरीब थी, लालच थी, दौलत इकट्ठी करने की ख्वाहिश थी, बेपनाह ख्वाहिश थी उसके अंदर। तो ये टू पर्सनैलिटीज़, कुछ ये पर्सनैलिटीज़ हर शख्स के अंदर हैं, ये कोई सिर्फ उसके फादर के अंदर नहीं है, आपके अंदर, मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये एलिमेंट पाए जाते हैं दोनों। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर वो दोनों एलिमेंट में बहुत ज़्यादा तज़ाद है और हम सेल्फ ग्रीड पर ज़्यादा सलांट रखते हैं तो फिर हम माशरे में क्रिटिसाइज़ किए जाएंगे। अगर हम बैलेंस रखते हैं इन दोनों के दरमियान में, देन दैट इज़ ओके, दैट इज़ ह्यूमन नेचर, यू कांट चेंज इट। नेक्स्ट टॉपिक जो थीम के अंदर डिस्कस करने वाला है, दैट इज चेंज एज मैच्योरिटी। दिखाया गया है कि करैक्टर के अंदर एक वक्त तब्दीली आई, उसने कहा हाँ मैं तो एग्जॉस्ट हो गया हूँ, थक गया हूँ मैं, और मैं 65 का हो गया हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने स्ट्रगल की है, मुझे कुछ नहीं मिला, तो मेरी ज़िंदगी में अब इस वक्त एक चेंज आ गया है, मैंने मैच्योरिटी को पा लिया है अपने इस नुकसान से। अब मैं एक सिंपल एक विलेजर की लाइफ गुजारूंगा, जैसे कि टॉलस्टॉय ने कहा गुजारी थी। उसने एक राइटर से, एक रॉयल फैमिली से निकलकर वो एक फार्मर बन गया था, तो सेम उसने भी कहा कि मैंने अब सिंपल, मैं किसी दरिया के किनारे पर एक कुटिया लगा लूँगा और दौलत की ख्वाहिश नहीं करूँगा। तो दैट वाज मैच्योरिटी, आई थिंक सो, इन सम वर्ड्स, इन सिनेरियो। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर ग्रीड है। ग्रीड को फिर थोड़ा सा नुमाया किया गया है। ये ग्रीड यानी कि उसके फादर, जब उसके हाथ में सिल्वर कैप पेंसिल थी, ही वॉज राइटिंग समथिंग, जब उसके बेटे ने कहा कि आई कैन सपोर्ट यू विद लिटिल बिट मनी, तो उसका बाप एकदम टेबल के ऊपर ऐसे झुक गया जैसे कि कोई फॉक्स, कोई लोमड़ी वो मड के घर के अंदर से वो ऐसी आंखें निकालती है लालच वाली। ग्रीड से ज़्यादा मैं कहूँगा इसको ग्रीड का नाम देने के बजाय इसको ख्वाहिश का नाम देना चाहिए। एक पावरफुल विल है फॉर अर्निंग मनी, स्ट्रगल। फादर के अंदर, फादर ने बेपनाह स्ट्रगल की, उसने पूरी कोशिश की अपने बिजनेस को चलाने की। वो एक बिजनेस का भी एक ऑब्सेशन होती है, ऑब्सेशन, एक लगाव होता है बिजनेस से भी। एक हिंदू आदमी का बेटा फौत हो गया तो लोगों ने कहा महाराज तुम तो बर्बाद हो गए, तो उस हिंदू ने कहा नहीं नहीं, मैं बर्बाद नहीं हुआ, मेरा नुकसान हुआ है, मेरा बेटा फौत हो गया, मुझे दुख है, लेकिन मैं बर्बाद नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा क्योंकि मेरा कारोबार अभी जिंदा है। तो लोग अपने कारोबार से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि वो जब कारोबार शुरू करते हैं वो कहते हैं आज हमने एक छोटा सा प्लांट, पौधा लगा दिया है और ये कल ट्री बनेगा, हम इसकी आबियारी करेंगे। दैट इज नॉट बैड। स्ट्रगल बिजनेस में होती है और बिजनेस से भी लगाव होना चाहिए। बिजनेस आपका एक छोटा सा लगाया हुआ पौधा होता है जो बड़ा होता है। इस स्टोरी के अंदर सोशो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स भी हैं कि जब इकोनॉमिकली बैंकक्रप्ट होते हैं लोग तो सोशली उनके मामलात कैसे होते हैं। जैसा कि हारोल्ड जब आता है, स्टॉर्ट में टैक्सी से उतरता है, तो वो यही सोच रहा होता है कि अब हमारी फैमिली के अंदर झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो जब लोग बैंकक्रप्ट होते हैं या जो इकॉनमी पुअर होती है वहां पर सोशल प्रॉब्लम बदतरीन होते हैं। अब दुबई में जाएं तो वहाँ आपकी चोरी नहीं होती, बल्कि मैं दुबई के अंदर 3 मरतबा अपना मोबाइल भूला हूँ और 3 मरतबा मुझे एक अरबी ने, एक अंग्रेज़ ने, एक इंडियन ने आके मोबाइल मेरे हाथ में पकड़ाया, जनाब ये आपका मोबाइल, आप छोड़कर वहाँ पर आ गए थे। मैं बड़ा हैरान हुआ और मुझे
خوشی بھی ہوئی کہ میں بچ گیا نقصان سے. اور ایک بار میں نے ایک اچھا موبائل ایک آدمی کو انڈین کو واپس کیا, راجیش اس کا نام تھا, پتہ نہیں کیا نام تھا. تو اکانومی از بیٹر, سوشل پرابلمز آر لیس. اکانومی پور ہے تو آپ کے گھر میں گھس کر آپ کی چوری کر لیں گے لوگ. 3 لاکھ کے اندر سے میرا بٹوا جس میں پاسپورٹ اور کچھ ڈالرز تھے وہ لے کر چلے گئے. میں بڑا حیران ہوا. مجھے حیرانگی اس بات پر نہیں تھی کہ میری چوری ہوئی, مجھے اس بات پر تھی یہ چوری ہوئی کیسے ہے. تو these are the social problems are over there related to economics. So same in the story there was also father and sons ریلیشن شپ جو ہے اس کا اسٹرین آیا ہے, وہ اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے ہے. ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر سم سائیکولوجیکل اسپیکٹس ٹو, سائیکولوجیکل ایلیمنٹ ہیں کہ ایک شخص سائیکولوجیکلی وش کرتا ہے, خواہش کرتا ہے, ول رکھتا ہے کہ وہ دولت کمائے, اور دوسرا شخص یہ خواہش کرتا ہے, ول رکھتا ہے کہ اس کی سمپل زندگی ہو, وہ اس بزنس سے جان چھڑانا چاہتا ہے. میں اپنے فادر سے ایک ہی آرگومنٹ کرتا تھا کہ آپ صبح نماز کے بعد شروع ہوتے ہیں بزنس کرنا, رات کو 11 بجے تک بزنس کی ہی کام چلتے رہتے ہیں, یہ کوئی زندگی ہے؟ ایک چھوٹی سی جاب ہو ٹیچر کی, جائیں شام کو 3 بجے 4 بجے واپس آ جائیں گھر, آ کر کسی دوست سے بات کریں, کسی نہر کے کنارے, کسی ریلوے لائن کے کنارے پر سفر کریں, کسی ریلوے اسٹیشن پر جا کر بیٹھے رہیں, کوئی دوستوں سے کمپنی کریں, کوئی علمی کمپنی ہونی چاہیے, اور واپس آ جائے آرام سے 9 بجے گھر سو جائیں. یہ ہے زندگی, میں کہتا تھا. سیم لائک جہاں تک گریڈ کا تعلق ہے, میری مادر کے پاس اللہ کی بڑی رحمت ہے, وہ اس کے پاس بہت زیادہ گولڈ ہے, اتنا گولڈ ہے وہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہے, پتہ نہیں کتنا گولڈ ہے اس کے پاس. میں نے کہا کہ اماں جی کے اندر بڑی لالچ ہے. میں نے کہا میں نے ایک بار اس کی سارے گولڈ اٹھا لینا ہے اور پھر 3 دن کے بعد واپس دے دینا ہے, تاکہ اسے جرک لگے کہ گولڈ از ناٹ ایوری تھنگ, ہیومن بینگ اور آپ کے بچے سب کچھ ہیں. پھر میرے ذہن میں خیال آیا, میں نے کہا میں نے گولڈ اٹھایا اور اسے جا کے وہ دروازہ کھولا اور دیکھا کہ گولڈ نہیں ہے, تو وہیں پر ہی مر جائے گی. میں نے اس ارادے کو ترک کر دیا کہ اس کی زندگی ہمیں زیادہ عزیز ہے. یہ بھی ایک ریلیشن شپ ہے. سو نائس آف یو, ٹیک ویل کیئر یور سیلف, تھینک یو فار بینگ ہیئر. یہ تھیمز تھے اور انہی کے اندر یہ سوال آئے گا. 5 نمبر کا کویشچن ہوگا. جو باتیں آپ نے سنی ہیں یہی باتیں لکھ دیجیے گا. بس ہارولڈ کا آپ کو اسپیلنگ آنے چاہیے, HAROLD, ہارولڈ, اور بینک کرپٹ کے اسپیلنگ آنا چاہیے BANKRUPT, bankrupt. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. ہمارا فون نمبر ہے 033346555305. اسکائپ, فیس بک, ٹویٹر پر میرا ایڈریس ہے لیکچرر MK بھٹا, BHUTTA, MK Bhutta. If you will Google my name and you will ask from Google that tell me the Skype of lecturer MK Bhutta, then they will also tell you. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here.